towards a new topic, private limited company. And we started the topic of private limited company. We understood the topic of company, what is the role of shareholder, what are shares, and what is private limited company. So I hope that you all are with me. Is it clear to all of you? Jivit Amania, Ahmed Usmani, Saad, Salman, Umama. Jivit, is it clear to all of you? I need a reply. Okay, now we are heading towards the advantages of being a private limited company. So, what can be the possible advantages to a corporate company uh, who is operating or which is operating as a private limited company? What can be the possible advantages? So, let's break down the advantages. The first advantage जो हमें पता है that is incorporation, that the company and the owner both carries the different identity, both have the separate legal identity. तो हमने कल की क्लास के अंदर पढ़ा था ना कि incorporation is the feature, incorporation is the advantage to the companies. और इसी की फिर हमारे पास रिफ्लेक्शन के अंदर एक और एडवांटेज है that is known as limited liability, that the private assets, the personal assets of the owner are not at stake. So this is also known as one of the advantage. Incorporation actually reduces the personal risk of the individuals that is associated to the business, that is associated to the company. तो हमारे पास जो नॉर्मली सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर अनइनकॉर्पोरेशन होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, दैट द ओनर्स एसेट्स आर एट स्टेक बिकॉज ऑफ द सेम आइडेंटिटी दे कैरी विद द बिजनेस, और दे हैव अ जॉइंट आइडेंटिटी विद द बिजनेस. तो उसके रिस्क के अंदर ज़्यादा हमारे पास रिस्क एलिमेंट ज़्यादा होता है. बट when you become a private limited company or you have your funds invested in a private limited company or in a public limited company, so it automatically reduces the personal risk, or that your personal assets and the private assets are at risk. So limited liability is also known as one of the advantage of operating as a private limited company. और क्या हो सकते हैं बेटा एडवांटेज हमारे पास? थर्ड, again, continuity. Because of the incorporation, business and owner both carries different and separate legal identity. So for example, if an owner dies, so the existence of the business will be there, the succession of the business will be there, the business will continue its operation with the same identity because owner is different from the business identity. So continuity is again one of the advantage of operating as a private limited company. इसके अलावा क्या advantages होंगे बेटा हमारे पास? जी बेटा, what can be the possible advantage? जी बेटा, अरीबा, Mania, Ahmad, Saad, Umama, what can be the other advantages of operating as a private limited company? More pool of finance. Yes, exactly. More capital can now be invested into business. Exactly. More pool of finance because we have the limit of 50 shareholders, or to get 50 shareholders into a private limited company. So automatically the pool of finance will be larger than the sole trader and the partnership business. So more pool of finance is again one of the advantage of operating as a private limited company. Now let's discuss the disadvantages. जी बेटा, what can be the possible disadvantages of operating as a private limited company? हमने कल भी लिस्ट डाउन किए थे. यहाँ पे देखें कि this company is not listed in stock exchange. इसका मतलब क्या है? It does not have the right to trade publicly. ठीक है.
तो जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती है, दे आर लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज एंड दे हैव राइट टू इशू द शेयर्स टू द जनरल पब्लिक. But private corporations and private limited company can only issue shares to the friends and family members. That's why these companies are not listed in stock exchange. So they cannot trade publicly. They cannot sell their shares to the general public. So this is known as one of the limitation. क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी को ये एडवांटेज है दैट दे कैन इशू द शेयर्स टू द जनरल पब्लिक सो दे कैन रेज मोर कैपिटल, मोर फाइनेंस, because there is no limitation in the type of shareholder. General public, anyone, any potential investor in the market can become the shareholder. But in the private limited company, it's a limitation that you cannot issue share to the general public, or the company is not listed in the stock exchange. So as compared to the public limited company, private limited company has less pool of finance because of the limitation and they are not listed in stock exchange. एक हमारे पास disadvantage. Second, restriction in trading of shares. अच्छा, रिस्ट्रिक्शन इन ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स का मतलब हमारे पास क्या है? जो हमने कल पॉइंट पढ़ा था ना कि एक्सचेंज ऑफ शेयर इज नॉट पॉसिबल until all the shareholders are agreed upon. So this is known as one of the disadvantage. लेकिन how? देखो बेटा, ये है advantage to some shareholders and this point is disadvantage to some shareholders. कोई मुझे ये बताएगा कि how it can be the advantage to the shareholders and at the same time how it can be the disadvantage to some shareholders? Anyone? I need your participation, beta. You can unmute yourself if you have any point to discuss. सर कुछ शेयर होल्डर्स को ये आइडिया पसंद नहीं आता होगा, कुछ को आइडिया पसंद आ रहा होगा. ठीक है. Anyone? Okay, sir. Anyone else? Ariba, Mania, Ahmed, Umama, Silvan. देखिए, restriction in trading of share is an advantage to those shareholder. देखिए, sometimes there is chance of being takeover. Hostile takeovers होते हैं ना हमारे पास. When you go in A2 level, so there are different types of takeovers: friendly takeover, hostile takeover. तो आपके जो hostile firms होते हैं, rivals होते हैं in the market, they just keep an eye कि आप कब जो है वो गिरते हो और वो उसे take over कर लेते हैं. Because taking over the business, buying out the competitors' business is one of the strategy to grow a business or to reduce the competition. ना? तो अगर सिंपली अगर आप अपने कॉम्पिटिटर के फर्म को बाय आउट कर रहे हैं, सो ऑटोमेटिकली यू आर रिड्यूसिंग योर कंपटीशन इन द मार्केट. सो हॉस्टाइल टेक ओवर, ये हमारे पास लिमिटेशन है कि अनलेस एंड अनटिल ऑल द शेयर होल्डर्स जो है ऑफ द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, वो एग्री नहीं हो जाते, तब तक आप शेयर्स नहीं सेल कर सकते. सो इट विल रिड्यूस द चांसेस ऑफ टेक ओवर. सही है. तो ये इट कैन बी द एडवांटेज टू दोज शेयर होल्डर who does not want to sell their shares and who does not want to be take over. And at the same time, this is the disadvantage and drawback to those shareholder who want to liquidate their shares. अब ये जो हमारे पास लिक्विडेशन होती है, लिक्विडेशन का मतलब हमारे पास क्या है कि मैं सेल आउट करना चाहता हूँ एंड आई वांट टू कन्वर्ट माय शेयर्स इनटू कैश. सो लिक्विडेशन इनटू कैश और लिक्विडेशन ऑफ शेयर्स का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल I have shares of 50,000 rupees and I want to liquidate them. इसका मतलब क्या है कि I want to sell them and I want to convert them into cash. So liquidation of shares का मतलब यहाँ पे simply हुआ कि this will be the disadvantage to those shareholder who are in need of cash and who want to liquidate their share. So this will be the disadvantage. Is it clear to everyone? जी बेटा, समझ में आ गया पॉइंट? अरीबा, मानिया, अहमद उस्मानी, साद, उमैमा. सर अगर उनको किसी और को शेयर देने हैं तो वो अपनों में से ही लोगों को, फैमिली और फ्रेंड्स में से दे देना, लाइक दूसरों पर एक और शेयर ऐड ऑन कर लें. लेकिन इसके अंदर भी लिमिटेशन है कि इंटरनली भी इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि इफ यू सेल शेयर्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हमने कल भी डिस्कस की थी कि फॉर एग्जांपल अहमद एंड आई
both are the shareholders of a private limited company और मुझे अपने shares को sell करना है, तो Ahmed is willing to buy the shares, but there are 40 shareholders altogether including us. तो मुझे 38 और shareholders को भी agree करना पड़ेगा for this exchange of shares, भले हम एक ही कंपनी का पार्ट है and we both know each other and all. क्यों? क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अपने शेयर सेल आउट करता हूँ टू अहमद उस्मानी एंड अहमद उस्मानी इज बाइंग आउट शेयर्स, so he can become a dominant shareholder or major shareholder of a company. And if he becomes a major shareholder, so dominant decision making power उसके पास हो सकती है ज़्यादा. So he can use that particular power in order to uh, anything take over and all, कुछ भी वो कर सकता है because he is the dominant and major shareholder. तो major proportion of ownership is in the hand of Ahmed Usmani. Is it clear? अब समझ में आ गया point? Yes, sir. Okay, best it. So अब इसके बाद हमारे पास एक और limitation थी कि the company is not listed in stock exchange. Is it clear? Restriction in the trading of shares. This can be the advantage to some shareholders and this can be the disadvantage to some shareholders as well. और क्या point हो सकते हैं हमारे पास? What else can be the disadvantage to the private limited company? मोर लीगल फॉर्मेलिटीज, कॉस्टली प्रोसेस. मोर लीगल फॉर्मेलिटीज का मतलब क्या है कि मोर पेपर वर्क, ठीक है, कॉस्टली प्रोसेस ऑफ रजिस्टरिंग एंड लिस्टिंग ऑफ योर कंपनी एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. सो एज कंपेयर टू द सोल ट्रेडर एंड पार्टनरशिप बिजनेस, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर जो लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं वो ज़्यादा होती हैं. कॉस्टली प्रोसेस आपके पास होता है ऑफ कन्वर्टिंग बिजनेस और रजिस्टरिंग और लिस्टिंग योर बिजनेस एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एज अ लीगल स्ट्रक्चर. तो ये हमारे पास दीज आर द डिसएडवांटेजेस. अच्छा, एडवांटेज के अंदर एक और हमारे पास एडवांटेज है, दैट इज नोन एज टैक्स ब्रेक्स. टैक्स ब्रेक का मतलब क्या है कि टैक्स जो है वो लो होता है ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एज कंपेयर टू द पब्लिक लिमिटेड कंपनी. तो जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है उसके अंदर जो टैक्सेस हम पे करते हैं वो लो होते हैं एज कंपेयर टू द पब्लिक लिमिटेड कंपनी. सो दिस इज द एडवांटेज दैट दे हैव टू पे less amount of corporate tax as compared to the other type of companies such as public limited company. So this is also known as one of the advantage. Also clear? Yes, sir. So we are done with the private limited company advantages, disadvantages. बेटा रिप्लाई नहीं आ रहा. अरीबा, अहमद उस्मानी, अली, उमामा, रिप्लाई मानिया नहीं आ रहा है आप लोगों के. प्लीज काइंडली रिप्लाई करा करें. जी सर क्लियर है. Okay. Now beta, let's move ahead. Let's start with the topic public limited company. आगे. Let's start with the public limited company. जी बेटा, what do you know about public limited company? Public limited company का हमारे पास जो abbreviation है जो कि हम use कर सकते हैं, that is PLC, Public Limited Company. PLC. P stands for public, L stands for limited, and C stands for company. So in order to represent that this company is either private or public, so you can use PLC. तो अगर किसी बिजनेस के आगे PLC लिखा हुआ है और किसी बिजनेस के आगे INC Incorporated लिखा हुआ है, so you can consider that this company is public limited company or is one of the limited companies. All set? Clear है? यहाँ तक साथ हो? अच्छा, अब again the question is why to convert your legal structure into PLC. Why to convert your legal structure into PLC? आप क्यों public limited company बनना चाहते हैं? What is the reason of becoming a public limited company? Any idea? बिग बनने के लिए, लॉन्ग टर्म में ग्रोथ के लिए, क्योंकि फाइनेंस बहुत एक्सट्रीम हो जाता है. ठीक है, फाइनेंस. Anyone else with Ariba, Mania, Ahmed, Ali, Umama?
चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मोर फाइनेंस, ओके, दिस एंड दिस इज एक्चुअली द रीजन ऑफ बिकमिंग अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अब आप इस चीज को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करिएगा। You were operating as a private limited company. You have the benefit of limited liability. You are an incorporated business. You have the feature of continuity, existence and succession of your business. So सारी चीजें तो same है, but the shareholders are limited because the company is not listed in stock exchange and company does not have right to issue the shares to the general public. So this was the limitation operating as a private limited company. But now, if you convert into a public limited company, so you will get a right to issue the shares to the general public through stock exchange, which is an open platform. तो बेसिक रीजन हमारे पास क्या होता है, द बेसिक रीजन ऑफ कन्वर्टिंग अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनटू पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज टू रेज मोर फाइनेंस or to target more shareholders or to target general public for trading of shares. This is the basic reason. अब एक कहानी सुनिएगा, हुआ क्या कि let's suppose कि we have a annual dinner of a private limited company and all the shareholders are over there. सो हमारे पास रात को डिनर के टाइम पे अचानक सबके मोबाइल पे दोज हु आर द शेयर होल्डर्स ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ईमेल पॉपअप होती है और उस ईमेल के ऊपर हमारे पास एक्चुअली इंटरनेशनल एक बिजनेस होता है एंड दे वांट टू गेट into a business proposal and into a business deal with us. So they are actually interested in making a business deal with us and they have selected us to do a business in Pakistan. तो लेकिन उसके अंदर सबसे बड़ा इशू ये है, जो अमाउंट required है for in order to accept that business proposal is very high, ठीक है, जो कि being a private limited company is not possible. तो अब मैं यहाँ पे जाता हूँ अपने एक इंडिविजुअल के पास एंड दैट इंडिविजुअल इज नोन एज सोलिसिटर। कौन कहलाता है बेटा हमारे पास? सोलिसिटर। अब ये क्या है, हमारे पास एक लीगल प्रोफेशनल है, ठीक है, एक बिजनेस लीगल प्रोफेशनल है। जैसे अक्सर हम सुनते हैं ना कि लोग जो है वो लीगल एडवाइजर के पास जा रहे हैं, लॉयर के पास जा रहे हैं फॉर द टैक्सेस इश्यूज एंड लीगल इश्यूज एंड ऑल। सो दैट पर्सन इज नोन एज सोलिसिटर। अब मैं उसके पास जाता हूँ इन ऑर्डर टू सीक अ गाइडेंस और एडवाइस। मैं उसको कहता हूँ दिस इज द सिनेरियो, हमें ईमेल आई है और हमें बिजनेस प्रपोजल आया है एंड वी आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन एक्सेप्टिंग दैट बिजनेस प्रपोजल। सो वो कहता है ओके, सो यू हैव टू वेज टू रेज द फाइनेंस। सिंपली हम सबके पास भी जो है वो नॉर्मली हम देखे जाएं, सो वी हैव टू वेज होते हैं हमारे पास, या किसी के पास ज़्यादा भी होते हैं। एक वे उसने कहा कि यू हैव टू वे इन विच द फर्स्ट वे यू कैन एक्वायर अ बैंक लोन बीइंग अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और टू ऑर्डर इन ऑर्डर टू एक्सेप्ट दैट प्रपोजल, कि आप बैंक लोन ले लो। मैंने कहा ठीक है। एंड व्हाट इज द सेकंड? The second way of raising finance is to become a public limited company, a large scale corporation. मैंने कहा कि अगर फर्स्ट वाले के अंदर अगर मैं उसको एनालाइज करूँ तो उसके अंदर डिसएडवांटेज ज़्यादा है, नया बिजनेस प्रपोजल है, फेल हो सकता है, और या फिर जो है फॉर एग्जांपल ये है कि इंटरेस्ट पे करना होगा, इट विल इंक्रीज द गेयरिंग इन आवर बिजनेस, एग्जिस्टिंग डेट बढ़ेगा, सब कुछ, प्रॉफिटेबिलिटी नेगेटिवली अफेक्ट होगी, इमेज इन दी अकाउंट्स खराब होगी कंपनी की। तो सुलैश सेटर ने कहा कि कन्वर्ट योर legal structure from private limited company into public limited company. And this process of converting a private limited company into public limited company is known as flotation. सुनिएगा, when a private limited company transforms into a public limited company or converts its legal structure from private limited company to public limited company, this process of conversion is known as flotation. Is it clear? So flotation is a process जिसके अंदर private से public limited company हो जाता है। All set? अब जब आप public limited company हो जाते हो तो इसका मतलब क्या है कि now you have the right to issue the shares to the जनरल पब्लिक, कि आप जो जनरल पब्लिक है, नॉर्मल इंडिविजुअल्स इन द मार्केट है, इन द स्टॉक एक्सचेंज, उसको आप शेयर्स इशू कर सकते हो। और प्लस आपकी कंपनी विल बी लिस्टेड इन स्टॉक exchange, your company will be listed in stock exchange.
अब सर हाउ द प्रोसेस ऑफ फ्लोटेशन विल बी कैरिड आउट, ये चीज़ तो समझ में आ गई कि प्राइवेट से पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट होऊंगा तो दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्लोटेशन एंड my company will get the right to issue the shares to the general public or trade publicly and my company will be listed in stock exchange. सब कुछ क्लियर है सर. हाउ द प्रोसेस ऑफ फ्लोटेशन विल बी कैरिड आउट, अब सुनिएगा हमारे पास क्या है. ये जो लीगल स्ट्रक्चर्स है इनके सारे लीगल डॉक्यूमेंटेशन लीगल फॉर्मेलिटीज को कौन देगा? गवर्नमेंट देखती है. गवर्नमेंट इज द ऑथराइज्ड बॉडी who is going to look after the issues of the legal structure, taxes and legal issues of the businesses. ये चीज़ तो हमें पता है. तो अब हमारे पास क्या होता है कि मैं सुलह साहब के पास गया एंड एक्सेप्टेड द सेकंड वे ऑफ और आई एम गोइंग फॉर द सेकंड मेथड ऑफ रेजिंग द फाइनेंस दैट इज टू बिकम अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी. तो अगेन आई विजिट अ सोलिसिटर, उससे कहता हूँ कि क्या किस तरीके से होना पड़ेगा. तो उसने कहा कि फर्स्ट स्टेज, अब हम प्रोसेस को पढ़ रहे हैं फ्लोटेशन की. इट्स अ पार्ट ऑफ अ जर्नल नॉलेज ताकि आपको कॉन्सेप्ट हो जाए. इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द कंटेंट. कुछ चीज़ें हैं लेकिन कुछ चीज़ें नहीं भी हैं. तो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द होल प्रोसेस कि हाउ अ कंपनी बिकम्स अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी. तो उसने कहा कि एट फर्स्ट यू हैव टू प्रिपेयर documents and documents will be articles of association and the second one is known as memorandum of association. मैं खुश. ठीक है. Article of association, memorandum of association, both the documents are prepared by the limited company, private limited company. इसके अंदर उसकी internal working है, external workings हैं, कहाँ पे किस टाइप के shareholders, financial information, objectives, whatever the information, मतलब it will provide the complete internal and external working of a private limited company. ठीक है. हम डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर कर लिया. सेकेंड स्टेज के अंदर हमारे पास होती है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन. अब ये हर कंट्री के अंदर होती है. सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन हमारे पास क्या होती है? इट्स अ लीगल गवर्नमेंट बॉडी जो कि इन सारे लीगल स्ट्रक्चर्स को, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के इश्यूज को, रजिस्ट्रेशन को, लिस्टिंग को देखती है. So these documents will be handed over or this will be verified by the Security Exchange Commission of Pakistan. अगर हम पाकिस्तान के अंदर हैं तो they will verify. अब ये Security Exchange Commission क्या करेगी? Now this Security Exchange Commission is going to verify कि भाई कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा है, ऑथराइज्ड है, कोई फ्रॉड तो नहीं है, कोई स्कैम तो नहीं है. दे आर गोइंग टू लुक इनटू द अकाउंट्स एंड ऑल. जो भी वेरिफिकेशन दे वांट टू डू दे विल डू द वेरिफिकेशन. Second, now they after the verification they are going to register my company as a public limited company. Third, they are going to list my company in the stock exchange for the trading. And the fourth thing, they are going to advertise my shares as well through their merchant banks and all. Because this is the first time that the company is going public and it will be difficult to gain the trust of the shareholders at the initial stage. कि सब घबरा रहे होंगे यार कैसी कंपनी क्या होगा and all. So government actually gives a back end to the newly converted public limited company कि भाई हम हैं पीछे and we have verified and all, and they advertise through their media and methods in order to encourage the shareholders to buy and to attempt the buying of these shares of a public limited company. So advertisement होगी हमारे पास. So these are the role that is played by the Security Exchange Commission. And this is the first time. इसके बाद क्या होगा कि after that the company is going for IPO, and IPO is known as the initial purchase offer, which means that this is the first time that the company is selling the product or selling the shares to the general public. Initial purchase offer. All set? यहाँ तक साथ. Is it clear to everyone, beta? Yes, sir. Okay, that's it. So let's move ahead again. अब हमारे पास ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया हमारे पास कि लीगल डॉक्यूमेंटेशन, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन एंड ऑल. अब यहाँ पे जैसी कंपनी शेयर्स इशू करती है तो अच्छा दो चीजें सुन लीजिएगा. एक और हमारे पास एक होता है इशू
share capital, and the other one is known as authorized share capital. अकाउंट्स के अंदर भी आपने देखा होगा, कंपनी अकाउंट्स के अंदर एक है इशूड शेयर कैपिटल, एक है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल. व्हाट इज द डिफरेंस? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल इज द अथॉरिटी गिवन, अलाउंस गिवन टू द पब्लिक लिमिटेड कंपनी कि इतना शेयर इशू ऑथराइज्ड है. इशूड शेयर्स का मतलब क्या है कि आपने करंटली कितने इशू कर लिए हैं, गवर्नमेंट ने आपको कहा इतने इशू करो और आप इतने इशू कर सकते हो, अलाउंस आपको है. और इशू शेयर कैपिटल का या इशू नंबर ऑफ शेयर्स का मतलब ये है कि आपने उसमें से इतने इशू करें. अगेन मूविंग अहेड कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर वी हैव शेयर होल्डर्स. नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड व्हाट आर द राइट्स ऑफ द शेयर होल्डर्स? शेयर होल्डर्स हमारे पास हैं कौन? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट शेयर होल्डर्स आर नोन एज द पोटेंशियल इन्वेस्टर्स इन द मार्केट, जो कि अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, फाइनेंस इन्वेस्ट करते हैं बाय बाइंग आउट द शेयर्स ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड दे बिकम द शेयर होल्डर. The shareholder actually they are known as the owners of the company because they buy shares and shares are known as the certificate of ownership. तो ये जो certificate of ownership है वो actually is a proof that this particular individual who owns these share he is known as the shareholder or the owner of a company. याद रखिए. अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि शेयर होल्डर्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं. व्हाई डू दे इन्वेस्ट इन अ कंपनी? First objective is to get dividend, and the second objective is capital gain. Now, what is dividend? What is capital gain? डिविडेंड जो है वो समझें कि एक प्रॉफिट की अमाउंट है जो कि शेयर होल्डर को मिलती है. कंपनी परफॉर्म करती है, कंपनी जो प्रॉफिट अर्न करती है उस प्रॉफिट का कुछ प्रोपोर्शन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है अमंग्स द शेयर होल्डर्स, एंड व्हाट अमाउंट एंड द अमाउंट दैट ईच शेयर होल्डर गेट्स इज नोन एज डिविडेंड. So dividend is known as the profit against or the reward against investing in a public limited company or buying out the shares of a public limited company. तो डिविडेंड जो है वो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ही है. एंड व्हाट इज कैपिटल गेन? कैपिटल गेन इज नोन एज द रीवैल्यूएशन इन इन्वेस्टमेंट. रीवैल्यूएशन इन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल हम सब जब इन्वेस्ट करते हैं सो वी ऑल वांट आवर इन्वेस्टमेंट टू इंक्रीज और रीवैल्यू. कि आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं 50 लाख की तो आप कहते हैं कि यार ये 55-60 लाख की हो जाए. तो अगर वो फॉर एग्जांपल आपने बाय करी है 50 लाख की एंड नाउ इट्स ऑफ 60 लाख, तो 10 लाख से वो रीवैल्यू गेन हो गई. तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी 50 की वो कितने की होगी? 60 की. तो शेयर होल्डर्स भी जब इन्वेस्ट करते हैं तो वो कहते हैं कि हम जितने का शेयर्स बाय कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इफ एन इंडिविजुअल बाइज द शेयर ऑफ 50,000 रुपीज और एक शेयर है 5 रुपीज का और उसके पास 10,000 शेयर्स हैं तो 50,000 हो गए. अब उस शेयर की प्राइस इंक्रीज होकर $6 हो गई है, 6 रुपीज हो गई है. तो आप 6 मल्टीप्लाई बाय 10,000 60,000 हो गई. तो 10,000 से उसकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो रीवैल्यू हो गई है, उसके जो कैपिटल था वो गेन हो गया, इंक्रीज हो गया. So these are the two basic objectives of the shareholders when they are investing in a public limited company. Is it clear? इसके बाद हमारे पास शेयर होल्डर्स के पास होता क्या है, पावर क्या होता है, क्या राइट होते हैं. हमारे पास पब्लिक लिमिटेड जो कंपनी है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी एक इवेंट कंडक्ट करती है दैट इज नोन एज एनुअल जनरल मीटिंग विच इज नोन एज AGM, annual general meeting. Now, so what is the purpose of conducting this event? दो रीजन है हमारे पास. एक हमारे पास है कि this AGM has elections and this AGM again is known as mode of communication. इलेक्शंस में क्या है? इलेक्शंस के अंदर जो शेयर होल्डर्स होते हैं दे विल वोट फॉर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द कंपनी, एंड दीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर गोइंग टू अपॉइंट मैनेजर्स इन ऑर्डर टू कंटिन्यू द ऑपरेशन ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी. तो इलेक्शंस के अंदर क्या होता है कि शेयर होल्डर्स हैव द राइट बिकॉज दे आर द ओनर्स, सो दे आर गोइंग टू अपॉइंट द डायरेक्टर्स, executives, CEO, CFO for a public limited company. And again, it's a mode of communication as well. In AGM, shareholders are being informed about the current position of the company, financial status of the company, what are the future objectives and plans that company wants to achieve. वो सारी चीज़ें उनके साथ डिस्कस की जाएंगी. तो managers and directors are going to discuss and going to represent the information of a public limited company
in front of the shareholders. So that's why it is known as mode of communication as well. All right. अब यहाँ पे हमारे पास एक इशू है कि शेयर होल्डर्स और मैनेजर के बीच में एक इशू है, डाइवोर्स बिटवीन ओनरशिप एंड कंट्रोल. जी बेटा, एनी आइडिया व्हाट इज डाइवोर्स बिटवीन ओनरशिप एंड कंट्रोल? एनीवन? जी बेटा, एनीवन? व्हाट इज डाइवोर्स बिटवीन ओनरशिप एंड कंट्रोल? नहीं पता सर. आज डाइवोर्स बिटवीन एन ओनरशिप एंड कंट्रोल का मतलब क्या है हमारे पास? देखिए, हमारे पास शेयर होल्डर्स जो हैं, they are known as the owners. हमें पता है because they buy shares and from buying shares they become the owner of a company, but they do not control the company. अगर फॉर एग्जांपल मैं पीएसओ का शेयर होल्डर हूँ, सो आई जस्ट हैव द शेयर्स ऑफ पीएसओ. मैं रोज पीएसओ की कंपनी के अंदर जाके थोड़ी बैठ रहा हूँ, वहाँ पे जाके जो डे टू डे ऑपरेशन है उन्हें थोड़ी देख रहा हूँ. सही है. तो शेयर होल्डर जो है वो सिर्फ ओनर है, दे डू नॉट कंट्रोल बट दे ओन द company. Then we have manager who are appointed by the board of directors of a company. तो मैनेजर्स जो है वो कंपनी का कौन करते हैं बेटा? कंट्रोल करते हैं. सो दे आर नोन एज द कंट्रोलर्स, बट दे डू नॉट own the company because they are not the shareholders. They are appointed employees by the board of directors. So they are just the employees who manages the company effectively in order to get salary and all. So this is known as divorce between ownership and control. कि shareholders are the owners but they do not control. But managers who are not the owners but they take day-to-day decisions and the operational decision regarding the company. So this is known as divorce between an ownership and control. क्योंकि सोल ट्रेडर पार्टनरशिप में क्या होता था कि इन सोल ट्रेडर एंड सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप बिजनेस, you are the owner and you are the decision maker. You are the controller of the business. Same in partnership business. In partnership business, all the partners are the owners. Profit and loss risk will be divided amongst them. Plus, they are going to take the decision and they are going to control the day-to-day operation of the business. So this is the drawback of operating as a public limited company. There is a feature of divorce between ownership and control. That shareholders are the owners, but they do not control the company. On the other hand, managers are the controllers, but they do not own the company. So this is known as the drawback. Is it clear? समझ में आ गया point? सर ये मैनेजर्स की सैलरी बहुत हेफ्टी होगी ना? बेटा it depends. It depends कि वैसे तो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज लार्ज स्केल पे होती हैं, तो ये जो मैनेजर्स होते हैं दे आर एफिशिएंट एंड हाईली स्किल्ड, तो इनकी सैलरीज 6 फिगर्स के अंदर अगर पाकिस्तान में देखी जाए तो होती है. ओके सर. Is it clear to everyone बेटा? Is it clear सबको बेटा? अलीबा, मानिया, अहमद, अली, उमैमा. Yes, sir. ओके, लेट्स मूव अहेड. हमने शेयर होल्डर्स के ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ लिया, डाइवोर्स बिटवीन ओनरशिप एंड कंट्रोल को पढ़ लिया. अगेन एक चीज और छोटी सी हमारे पास, हमारे पास होते हैं शेयर्स की वैल्यू होती है, अकाउंट्स के अंदर भी पढ़ोगे. दैट इज फेस वैल्यू, पार वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, और एक होती है हमारे पास मार्केट प्राइस या फिर मार्केट वैल्यू. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? फेस वैल्यू, पार वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, दिस इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ द शेयर, जिस पे फर्स्ट टाइम शेयर इशू हो रहा होता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे शेयर इतने का एक्चुअली है हमारे पास एट द फर्स्ट टाइम व्हेन द कंपनी हैज स्टार्टेड परफॉर्मेंस इन द मार्केट.
सो शेयर्स डायरेक्टली तो इतने महंगे नहीं होंगे, तो फेस वैल्यू, पार वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू इज द एक्चुअल लीस्ट वैल्यू ऑफ द शेयर, कि इससे शेयर कम हो ही नहीं सकता हमारे पास, जैसे 1 रुपए से कम शेयर हो ही नहीं सकता हमारे पास। तो ये हमारे पास फेस वैल्यू, पार वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू। नाउ व्हाट इज मार्केट प्राइस एंड मार्केट वैल्यू? After entering into a market or after listing into the stock exchange, कंपनी परफॉर्म करती है, कंपनी की मार्केट परफॉर्मेंस, डिमांड फॉर शेयर्स, डिविडेंड वो जो अपने शेयर होल्डर्स को दे रही होती है प्रॉफिट, तो उसके बाद ओवरऑल उसकी जो परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, तो आप उसकी जब डिमांड एंड सप्लाई मार्केट मैकेनिज्म काम करना शुरू कर देती है और उसके जो रिजल्ट्स फेवरेबल होते हैं, परफॉर्मेंस अच्छी होती है, तो उसकी शेयर की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। तो आप पहले जो शेयर 1 रुपए का था, नाउ इट्स 4 रुपीज, 5 रुपीज, 10 रुपीज। तो ये जो 5 रुपीज, 10 रुपीज जो वैल्यू बढ़ चुकी है, और ये जो प्राइस है ये मार्केट मैकेनिज्म ने सेट करी है, और मार्केट ने सेट करी है, डिमांड एंड सप्लाई ने सेट की है। सो दिस प्राइस विल बी नोन एज मार्केट प्राइस एंड मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। जो एक्चुअल वैल्यू है दैट इज फेस वैल्यू, पावर वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, और ये जो परफॉर्मेंस है और डिमांड एंड सप्लाई से अफेक्टेड वैल्यू, दैट विल बी नोन एज मार्केट प्राइस और मार्केट वैल्यू। इज इट क्लियर? Need to publish their accounts, no privacy, is one of the disadvantage of operating as a limited companies, चाहे वो प्राइवेट हो पब्लिक हो। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी को भी अपने अकाउंट्स को क्या करना पड़ता है, पब्लिश करना पड़ता है, कि वॉट एवर दे आर अर्निंग। सोल ट्रेडर पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर फॉर एग्जांपल किसी भी सोल ट्रेडर बिजनेस के पास जाओ या उसके ओनर के पास जाओ, उससे आप पूछ सकते हो कि हाउ मच अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज इन योर बुक्स, ठीक है, हाउ मच अमाउंट ऑफ प्रॉफिट यू हैव अर्न। नहीं भाई मुझे मैं क्यों बताऊं, ठीक है, पार्टनर्स भी नहीं डिस्क्लोज करेंगे। सो दे हैव प्राइवेसी ऑफ देयर अकाउंट्स, but in public limited company and limited companies you have to publish your accounts. It means there is no privacy, कोई भी privacy नहीं है। तो whatever you are earning, whatever the amount of revenue you have generated, it's all in the books and it has been published for the different stakeholders such as government, such as shareholders to analyze your performance। shareholders consider करेंगे in order to analyze the performance either to invest in your company or not by buying the shares। Government will consider in order to incorporate the corporate tax। तो इसके अंदर ये ड्रॉबैक भी है हमारे पास कि we need to publish our accounts, so there will be no privacy of our accounts and our information, जैसे कि जो advantage है to the sole trader and partnership business। So now this is the end of a public limited company as well। जी बेटा, anyone? सर अकाउंट्स किस किस को पब्लिश करते हैं पीएलसी में? अकाउंट्स विल बी पब्लिश, मतलब वो अपने उसके अंदर पब्लिश कर देंगे, तो इट विल बी कंसिडर्ड बाय एनीवन। सो इट्स ओपन फॉर ऑल ऑफ शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट, जो कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स हैं जितने भी। जब एक प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड कंपनी फॉल हो जाती है, वो खत्म हो जाती है, तो क्या होता है? उसकी शेयर वैल्यू खत्म हो जाती है, कैसा होता है? नहीं, दैट प्रोसेस सुन ले इसको भी। एक तो हमारे पास प्रोसेस है कि टू कन्वर्ट प्राइवेट इनटू पब्लिक, दैट इज नोन एज फ्लोटेशन, हमने पढ़ लिया। लेकिन अगर यही सीन है हमारे पास कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कन्वर्ट होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्लोटेशन। ये बात तो मुझे पता है, क्लियर है। लेकिन अगर यही सिनेरियो हमारे पास रिवर्स हो जाए कि एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है वो कन्वर्ट हो जाए इनटू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगेन, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज डी लिस्टिंग। दिस इज नोन एज delisting, कि एक कंपनी delist हो गई है from the stock exchange, now it does not have right to issue the shares to the general public or trade publicly। तो पहले जो उसकी लिस्टिंग हुई थी इन द स्टॉक एक्सचेंज के, द कंपनी इज लिस्टेड इन द कैटेगरी ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज या पब्लिक लिमिटेड कंपनी, नाउ इट इज नॉट लिस्टेड, डीलिस्टिंग है। अब ये कुछ भी हो सकता है हमारे पास, बैंक्रप्सी, फ्रॉड एंड ऑल। तो गवर्नमेंट हैज द पावर टू रजिस्टर एंड लिस्ट, तो गवर्नमेंट हैज द पावर टू अनरजिस्टर एंड डीलिस्ट। ठीक है, और पब्लिक लिमिट कंपनी के अंदर ये है कि कोई प्राइवेट लिमिट कंपनी शेयर होल्डर्स जो है वो बाय आउट कर लें मेजर शेयर्स, सो दैट पब्लिक लिमिट कंपनी कैन गोज प्राइवेट एज वेल।
क्लियर हो गया पॉइंट? तो ये कंपनीज तो बहुत डिटेल के अंदर बहुत ब्रॉड है. सो वी हैव मैनी टेक्नैलिटीज, वी हैव मैनी पॉइंट्स टू डिस्कस. तो बहुत सारी चीज़ें, बट ओवरऑल हमें एएस लेवल के अंदर लिमिटेड रहना है. तो जो जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी, सच एज फ्लोटेशन, शेयर होल्डर्स के ऑब्जेक्टिव, हाउ द प्रोसेस ऑफ फ्लोटेशन कैरीज आउट, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स एंड ऑल, सब कुछ ऑल सेट क्लियर है. जी सर. जी बेटा, आई नीड अ रिप्लाई फ्रॉम एवरीवन. उमामा, अली, अरीबा, अहमद जी सर. उस्मानी. ओके. अच्छा, आप नाउ लास्ट क्लास का स्क्रीनशॉट किसने मिस कर दिया था? मंडे वाली क्लास का. ओके. बेटा, आई वांट ऑल ऑफ यू टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ मंडेज क्लास. मंडे क्लास को हमने शायद ये स्टार्ट किया था, लीगल स्ट्रक्चर. This is the first Like, page of Monday class. Second page. Third page. Fourth page of tomorrow's class. Done. So are you all done with the screenshot? And I want all of you to note it down in your notebook. ठीक है बेटा, काम बहुत ज़्यादा हो गया है. So those who haven't copied and noted down in the notebook, ठीक है, तो it will be hassle for you guys if you are willing to copy it later. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा काम हो गया. So I want all of you to note it down in your copy notebook. Okay beta, so enough for today. We are going to discuss another topic by tomorrow inshallah. Allah Hafiz, take care. सर एक बार ये हाँ, प्राइवेट लिमिटेड के एडवांटेजेस एक बार दिखा दे, मैं लिखे नहीं थे. प्राइवेट लिमिट कंपनी के एडवांटेजेस बेटा ये है हमारे पास. Incorporation, limited liability, continuity, more pool of finance, tax breaks. सही है सर, थैंक यू. Thank you. Allah Hafiz, take care. अल्लाह हाफिज.